السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. لمس جنون بائی زرناف چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. سالار کو جب لگا وہ سانس نہیں لے رہی تو وہ آرام سے دور ہوا. جزا نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا اور خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی. آئندہ ہمارا جو بھی مسئلہ ہو تم اس کمرے سے باہر نہیں لے جاؤ گے، سالار نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جو کروٹ کے بل لیٹ کر آنکھیں مون چکی تھی. لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. سالار نے بھی اسے تنگ نہیں کیا اور دوسری طرف آ کر لیٹ گیا. اس کے لیٹتے ہی جزا کے کب سے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے. انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے بس ایک فیملی کی عزت کے لیے، اور اس فیملی کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے اپنی عزت، نفس اور انا کو مارنا پڑتا ہے. اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی جان دینا بہتر سمجھتی. سالار خان زادہ کے نکاح میں جانے سے پہلے وہ کمزور تو نہیں تھی، وہ کیوں اتنی بے بس ہوئی؟ اسے اس پل سب سے نفرت محسوس ہوئی. سالار اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹا تھا مگر جزا کی اس کی طرف پیٹ تھی. اپنے کمرے میں یہ اضافہ اسے اچھا لگ رہا تھا، اور تھوڑی دیر پہلے جو سکون اسے ملا تھا وہ سوچ کر ہی چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی. وہ جانتا تھا اس نے جزا کے ساتھ غلط کیا، مگر اب تو سب ٹھیک ہو گیا تھا. اب وہ کیوں سب بھول کر خود کو نارمل نہیں کر رہی تھی؟ ماضی بچپن سے لے کر جوانی تک ہی جزا سب سے زیادہ سالار کے قریب رہی. اس نے ایک بار فروہ بیگم اور شاہین بیگم کو کہتے سنا تھا کہ جزا سالار کی دلہن بنے گی. بچپن سے ہی یہ بات اس کے کچے ذہن میں بیٹھتی چلی گئی، اور جیسے جیسے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی گئی یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی. ایک بار اسے کچھ لڑکوں نے چھیڑا تھا جس پر سالار نے اس کے سامنے لڑکوں کی بہت دھلائی کی اور اسے سکھایا تھا کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ بات جب عزت پر آ جائے تو کوئی معافی نہیں. سالار اس کا خیال رکھنا کہیں نہ کہیں اس معصوم کے دل میں یہ بات ڈالتا تھا کہ سالار بھی اسے پسند کرتا ہے. وہ 18 سال کی تھی اور وہ 27 سال کا تھا. وہ اپنے کالج کی گرلز کے ساتھ لنچ پر آئی تھی. لذا تمہاری بریسلٹ تو بہت پیاری ہے، اس کی دوست نے تعریف کی تو ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی. یہ بریسلٹ اسے سالار نے اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا. تھینک یو، تھینک یو یار، اس نے شکریہ ادا کیا. ابھی اس نے دوسرا نوالا منہ میں ڈالا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے کھلکھلاہٹ کی آواز آئی. اس کی کھلکھلاہٹ میں کسی اور شخص کی آواز بھی شامل تھی. اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو وہ سالار خان زادہ تھا، جو ایک لڑکی کے ساتھ کافی کلوز بیٹھا مسکرا کر بات کر رہا تھا، اور وہ لڑکی بات بات پر اس کے ہاتھ پر مار رہی تھی. یہ سب دیکھ اسے اپنے اندر درد کی ایک ٹیز اٹھتی محسوس ہوئی. آنکھوں میں ڈھیر سا پانی جمع ہو گیا. وہ غصے میں اس کے ٹیبل پر پہنچی. اٹھو یہاں سے، وہ خوفار نظروں سے دونوں کو گھورتے ہوئے اس لڑکی سے بولی. سالار نے حیرانگی سے جزا کا لہجہ دیکھا. جزا تم یہاں کس کے ساتھ آئی؟ سالار نے اس سے پوچھا مگر وہ جواب دینے کے بجائے اس لڑکی کو نفرت سے دیکھنے لگی. سالار تم جانتے ہو اسے کون ہے؟ یہ کیا تمہاری بہن ہے؟ فاطمہ جو سالار کی یونیورسٹی فرینڈ تھی اس نے پوچھا. جزا کی تو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی. وہ غصے سے ایک دم اور قریب گئی. Stay away from سالار because he is only mine. وہ چبا چبا کر اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی. سالار خان زادہ تو اس کے الفاظ پر قد سے ہل گیا. جزا کیسے اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتی ہے؟ ضرور اس نے غلط سنا ہوگا. اس نے جزا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا. کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو. اسے پوری امید تھی کہ اس نے غلط سنا ہوگا. آپ بس میرے ہیں، میں آپ کے ساتھ کسی بھی لڑکی کو برداشت نہیں کروں گی. اور اسے نظریں ملائے پورے اعتماد سے بولی. اپنی بکواس بند کرو، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس کا دل کر رہا تھا دور رکھ کے اس کے گال پر تھپڑ لگائے. اس نے سختی سے جزا کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر لے آیا. گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر پٹکا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ سختی سے جمے تھے. ہاف سیکورٹی شرٹ سلیوز کی شرٹ، اس کے بازوں سے ابھری ہوئی نسیں واضح نظر آ رہے تھے. جزا کی سمجھ میں اس کا غصہ نہیں آیا. وہ دروازے سے لگ کر خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. اس نے گھر کے باہر گاڑی روکی اور بنا اس کی طرف دیکھے اسے گاڑی سے نکل جانے کا کہا.
जिजा ने मौका गनीमत जाना और गाड़ी से उतरकर अंदर भाग गई। आज 2 दिन हो गए थे मगर सालार घर नहीं आया था। वो हर तरफ बुलाई बुलाई फिर रही थी। वो चाहकर भी अपनी गलती नहीं ढूंढ पा रही थी। होश में इसने गाड़ी रुकने की आवाज पर भागती हुई गई। इसको देखकर सालार को दोबारा वही सब याद आ गया। गुस्से से इसकी रगें तन गई। वो इसे नजरअंदाज किए आगे बढ़ने लगी। सालार आप आ गए। वो खुशी से इसके पास आई। बचपन से ही वो इसे सालार बोलती थी, मगर प्यार प्यार में कभी कभी किसी ने टोका नहीं। इसकी तोतली जुबान से सालार इतना अच्छा लगता था कि अक्सर तो अर्श भी इसकी फरमाइश करता था कि इसे भी नाम लेकर पुकारे। आज इसके मुंह से ही सालार लफ्ज ही इसे हथौड़े से तरह लगा। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना, समझी, वरना तुम्हारे टुकड़े करके जानवरों को खिला दूंगा। वो इसे वार्न करता अपने रूम में बंद हो गया। पूरे 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। वो इसके सामने बहुत कम आता था। अगर आ भी जाता तो इग्नोर कर देता था। सबने इनके बीच की रंजिश महसूस की थी, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सबका मानना था सालार जरूर जिजा की किसी गलती पर नाराज हुआ होगा। बड़ी अम्मी, मैं शादी करना चाहता हूँ अपनी क्लास फेलो से, सालार ने फरवा बेगम से कहा। पहले तो वो कुछ देर खामोश रही, क्योंकि सालार और जिजा को साथ देखना शाहीन बेगम और फरवा बेगम दोनों की ख्वाहिश थी। मगर बच्चों की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर कुछ भी करना इनको पसंद नहीं था। ठीक है बेटा, आप मुझे और अपनी छोटी अम्मी को इस बच्ची के घर ले जाना ताकि हम रिश्ता मांग सकें। वो एक गहरी सांस लेकर बोली। इन्हें दुख जरूर हुआ था, मगर जबरदस्ती रिश्ते नहीं बनते। जिसा जो अम्मी के कमरे में आई थी, दरवाजे से इनकी बात सुनते ही रोते हुए वापस भाग गई। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो मुझसे मोहब्बत करते हैं और सबसे ज्यादा मुझे प्यार देते हैं। वो अपने कमरे में अंधेरे में बैठे रो रही थी। वो जरूर मुझसे नाराज होंगे क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट में आसिम की फ्रेंड से बदतमीजी की। मैं इन्हें मना लूंगी। वो ये सब मुझे जलाने के लिए कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, मगर मैं इनको मना लूंगी। वो दिल में इरादा किए उठी और सलार के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खुला था। वो बिना दस्तक दिए अंदर चली गई। सलार, जो लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था, इसकी हालत देखकर परेशान हो गया। हाँ, वो इससे नाराज था, मगर इसने कभी आयत और जिजा में फर्क नहीं किया था, इसलिए इसे रोते देख इसकी सांस सीने में अटक गई। वो भूल गया था जिजा की हरकत, अपनी नाराजगी सब। वो जल्दी से इसके पास आया, इसको थाम कर बेड पर बिठाया और खुद घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया। क्या हुआ मेरी गुड़िया, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? वो बहुत परेशानी से इससे पूछने लगा। जैसे बताओगी मुझे क्या हुआ है। इसकी मुसलसल खामोशी और इस कदर शिद्दत से रोने पर वो गुस्से से धाड़ा। आ, आ, आप आ, आपकी कैसे किसी और से शादी कर सकते हैं? इसकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। चेहरा खतरनाक हद तक सूख हो चुका था। इसमें रोने वाली क्या बात है? वो सर्द लहजे में बोल। इतनी देर से जो परेशानी थी, अब इसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। देखो, आदम भाई की भी तो शादी हो रही है ना, कुछ दिनों में तो मेरी भी हो जाएगी। मैं इसमें रोने वाली कोई बात नहीं, रिलैक्स, चलो जाओ फ्रेश होकर आराम करो। हम तीनों हमेशा तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे हमेशा रखा। सालार ने इसे भेजना चाहा, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं, सालार को लगता था कि जिजा इस बात से डर रही है कि कहीं वो किसी और के आने से इसे भूल ना जाए। आपकी कैसे किसी और से शादी कर सकते हैं? आप अम्मी से कहें कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। इसने सलार का हाथ थाम कर कहा। इसकी बातें सुनकर सलार को अपने सर पर पहाड़ गिरता हुआ लगा। वो कैसे इस तरह की बातें कर सकती थी? वो कुछ और समझ रहा था, मगर जिजा के लफ्जों ने इसे खुद की नजरों में गिरा दिया था। तो क्या मतलब है तुम्हारी बात का? इसकी जुबान लड़खड़ाई थी। इसे अब भी लग रहा था वो कह देगी तो मैं मजाक कर रही थी, मगर जिजा की हालत इसे चीख चीख कर सच्चाई बता रही थी, जिसे वो अपने झूठे दलाल से कब से इग्नोर कर रहा था। आप मुझसे नफरत नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं ना? मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप अम्मी से हमारी शादी की बात करें। वो जिस कुछ और सुनने के इंतजार में था, हैरानगी इस बेयकीनी से इसे देखने लगा। वो गम और गुस्से से इसे देखने लगा, जो इसकी हालत से बेखबर अपनी बात बताते रोई जा रही थी। निकलो यहाँ से। वो इतनी जोर से दौड़ा कि अगर आदम और अर्श घर पर होते तो जरूर वहां आ जाते, क्योंकि सिर्फ इन तीनों के रूम ही ऊपर इस साइड थे, बाकी सबके नीचे थे। इसकी धार पर जिजा ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोंटा। खौफ से इसकी आंखें फैल गई।
मगर वो एक कदम भी अपनी जगह से नहीं हिली। इसे लगा वो उसके कमरे से निकले तो वो अपने दोस्त से शादी कर लेगा। वो सलार को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? दफा हो जाओ यहाँ से। सालार ने इसे एक जगह टिके देखकर कहा। लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। वो रोते रोते बैठ गई। सालार का दिल क्या इसके साथ साथ खुद को भी शूट कर दे, जो इसके ऊपर अपने रिश्ते का मजाक बना रही थी। इसने हमेशा से एक बहन ही समझा था, और इस तरह की घटिया सोच इसके जहन में कैसे आ सकती थी? इस वक्त इसे शदीद नफरत महसूस हुई जजा से। मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर ले। वो लड़की इसके सामने दो जानों बैठी अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। वो बेहिस बना इसे देखता रहा, 2 कदम चलता इसके पास आया और झुका इस लड़की का बाजू पकड़ उठाया। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। इसी आंखों में सामने मौजूद लड़की के लिए हकारत के सिवा कुछ न था। इस वक्त इसका बस न चला वो जिजा को आग लगा दे। मगर मैं आप चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ ने इसकी मूर्ति बंद कर दी और उसे खींचते हुए बाहर लाया और इसके मुंह पर दरवाजा धाड़ की आवाज से बंद कर किया। वो खाली खाली नजरों से इसके गाल पर हाथ रखे बंद दरवाजे को देखने लगी। वो किसी रोबोट की मानंद चलती हुई अपने कमरे में आकर बेड पर ढह गई। तुम अगर दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी मैं तुम जैसी लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। बार बार एक ही जुमला इसके कानों में गूंजने लगा। आंसू आंखों से निकलकर बालों में जज्ब होने लगे। इसके जाने के बाद सलार ने गुस्से से अपना पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। वो क्यों ऐसी बातें कर रही थी? क्या वो इसे पसंद करती थी? कर क्यों? वो तो हमेशा से छोटी बहन समझता था। वो तो इस तरह की घटिया सोच इसके जहन में आई कैसे? वो गुस्से से इसका सर फट रहा था। आज वो अपनी ही नजरों में गिर गया था। इसका कौन सा अमल जिजा को ये सोचने पर मजबूर कर गया, वो समझ नहीं पा रहा था। इसने तो हमेशा एक बच्ची की तरह इसे ट्रीट किया था, क्योंकि वो घर में सबसे छोटी थी। आज सिर्फ अंगारा हो गई थी। पान ज्यादा मेंशन में नाश्ते की इश्तिहांगीर खुशबू फैली हुई थी। जिजा का रवैया अब भी घर वालों के साथ नॉर्मल हो गया था। जिजा और सालार दोनों एक कमरे में रहते हुए भी अजनबी की तरह थे। सालार भी इसे छेड़ने से गुरेज करता रहा था, क्योंकि इसके फटने पर पूरा घर मुतासिर होता। अकीदत को भी कोशिश करती थी कि वो सजदा बेगम के सामने कम आए। वो सबसे मिन्नतें करके आयत के कमरे में शिफ्ट हो गई थी। आज भी किसी मीटिंग की वजह से पिछले 3 हफ्ते से आउट ऑफ कंट्री था। सजदा बेगम से इसका सामना ना होने के बराबर था, लेकिन अगर कभी देख लेती तो चुप करके निकल जाती। वो अपनी वजह से किसी का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। इसने अपने एक दोस्त से राब्ता किया। आयत के फोन से वो 1-2 दिन में यहाँ से जाने का सोच चुकी थी। अम्मी देखे, मन्नत ने मुझे मामा कहा। शिल्पा की पुरजोश आवाज सब सुनकर सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए, जो लाउंज में मन्नत और आयत के साथ बैठे खेल रही थी। अब हल्का हल्का चलना शुरू किया था इसने। मन्नत, मामा बोलो। शिफा इसे प्यार से बहलाने लगी। वो पहले सिर्फ मम मम कहती थी, आज इसने साफ मम्मा कहा और इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मम्मा, वो कहने के बाद खिलखिलाकर अपनी माँ के सीने में सर छिपा गई। जिजा को यह मंजर इतना खूबसूरत लगा, उसने जल्दी से वीडियो बनाकर आदम के नंबर पर सेंड कर दिया। मुन्नू, फूफो बोलो आप। आयत इसके पास बैठकर बोली। मगर मन्नत अपनी माँ के सीने से सर निकालने को तैयार नहीं थी। वह एक शर्मीली बच्ची थी। मेरी मन्नू सिर्फ अपनी मम्मा की बात मानेगी। इसकी हरकत पर शिफा ने आयत को जुबान चढ़ाकर कहा। सब इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिए। अकीदत अच्छी है। फरमा बेगम की बात पर सजदानंद की तरफ देखा। तुम इसे कबूल करने की कोशिश करो तो वो इंशाल्लाह वो एक अच्छी बहू साबित होगी। भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इस लड़के की वजह से मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे समझे। सजदा बेगम की बात पर वो खामोश हो गई। सर, कोई तारा मलिक नाम की औरत आपसे मिलने आई है। वो जिसा की भेजी गई वीडियो देखकर मुस्कुरा रहा था। जो शादी से दूर भागने वाला अब हर पल इस प्यारी लड़की के ख्यालों में रहने लगा था। वो लड़की दिन ब दिन इसके दिल में घुसती जा रही थी, और जब वो मन्नत की वजह से इसे नाराज होती थी, इसका दिल करता था बस इसको खुद में संभाल ले। वो सगी माँ से बढ़कर मन्नत को चाहती थी। इल्ताफ की बात पर इसकी तरफ देखा और इसे अंदर भेजने को कहा। तकरीबन 10 मिनट बाद लगभग 20
बस 40 के करीब एक औरत इसके ऑफिस में दाखिल हुई, जिसने सादा सा लॉन का सूट पहन रखा था। चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। जी बैठिए। आदम खान ज़ादा ने चेयर की तरफ इशारा किया तो वो बैठ गए। जी कहिए मोहतरमा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी मेरा नाम तारा मलिक है और मैं अपना पार्लर चलाती हूँ। मेरी एक बेटी है जो पिछले 2 महीने से गुम हो गई। वो कहीं नहीं मिल रही। इस औरत ने भराई हुई आवाज में कहा। आपने किसी थाने में कंप्लेन की कोई? आदम ने संजीदगी से कहा। नहीं सर, जवान बेटी है। अगर इसके मंगेतर को पता चला तो रिश्ता खत्म कर देगा। लोग ताने देंगे। मैंने अपने तौर पर हर जगह ढूंढ लिया मगर वो मुझे नहीं मिली। मैं मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दे, इस औरत ने रोते हुए कहा। आदम को अफसोस हुआ। कोई पिक्चर है इनकी आपके पास? आदम के पूछने पर जो तस्वीर इस औरत ने इसकी तरफ बढ़ाई, आदम को लगा कोई पहाड़ इसके सर पर आ गिरा हो। वो अभी घर जाने के लिए अस्पताल से निकली थी कि किसी ने इसे खींचकर दीवार से लगाया। ये पार्किंग एरिया था। दूर दूर तक कोई नहीं था। इसके दोस्त ने इसको घर छोड़ना था, इसलिए वो पार्किंग में इसका इंतजार करने आई थी। मगर बालाज को देखकर डर से इसकी आंखें फट गई। हेलो प्यारी लड़की, लगता है मुझसे छुपने लगी हो, मगर तुम जानती नहीं बाला शाह की नजरों से बचना नामुमकिन है। वो इसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला। ये इसका पसंदीदा अमल था, मगर इसकी यह हरकत आयत को इंतहा नागवार गुजरी थी। इसे अपने जिस्म में चूंटियां रेंगती महसूस हुई। कौन हो आप? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़? वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली। वो ठीक से पढ़ाई भी पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी। घर से निकलते हुए हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। मार्शमैलो बहुत पसंद है मुझे। आयत को देखकर शरारत से अपनी आंख विंग करके बोला। इसके बाद आयत के सर से गुजर गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे और मेरा पीछा छोड़ दे। वो गुस्से से इसे धक्का देती बोली। बालार शाह को इसका दूर झटकना बहुत बुरा लगा। वो गुस्से में इसकी तरफ बढ़ा और इसका बाजू जकड़ कर इस पर झुका। आइंदा अपने हाथों को काबू में रखना, वरना इन हाथों को झड़क से जड़ से काट कर फेंकते मैं वक्त नहीं लगाऊंगा। वो सर्द लहजे में बोला और वहां से निकलता चला गया। पीछे वो रोती हुई वहां बैठ गई और जब से आया था गहरी सोच में था। वो शिफा के अब्बू के कातिल को गिरफ्तार कर चुका था और कोर्ट में शिफा को ही गवाही देनी थी। मगर वो जानता था वो बहुत मासूम और डरपोक है, इसलिए वो अभी इसको सबसे दूर रख रहा था। और आज जो कुछ थाने में हुआ वो इसके वहमो गुमान में नहीं था। आपकी चाय। शिफा की आवाज पर इसने चौंक कर देखा। काले शिफॉन के फराक में इसका दूधिया चेहरा चमक रहा था। इधर आया, इसने शिफा को पास बुलाया। वो झिझकती हुई इसके पास बैठ गई। 1 हफ्ते बाद आपको कोर्ट चलना है मेरे साथ। इसने शिफा का हाथ थाम कर बात शुरू की। शिफा ने ना समझी से इसकी तरफ देखा। आपको जज के सामने वो सब कुछ बताना है जो उस रात हुआ था, कैसे आपके अब्बू का कत्ल हुआ, सब। आदम के चेहरे इसके चेहरे के बदलते रंगों को अच्छे से देख सकता था। मगर मैं कैसे जा सकती हूँ? वो घबरा कर पूछने लगी। मैं आपके साथ चलूंगा, भरोसा रखें मुझ पर। मुझे नहीं जाना, प्लीज। मुझे इनके सामने नहीं जाना, वो मुझे ले जाएंगे। मुझे नहीं जाना। वो हजियानी होकर चीखने लगी। आदम ने खींच कर इसे सीने से लगाया। उसके सीने से शर्ट को मुट्ठी में दबोचे फुट फुट कर रोने लगी। वो बहुत खतरनाक है। वो मुझे आपसे दूर कर देंगे। वो उसके सीने से लगी बोली। आदम का दिल जोर से धड़का। वो बच्चा नहीं था, वो उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुका था और शिफा का चुप चुप कर इसे देखता था, मगर वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकता था। ठीक है, सब परेशान मत हो। मैं कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करूंगा। उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला। वो आधी रात को सबके सोने की यकीन दहाने करके अच्छे से चादर से खुद को कवर करती अपने कमरे से निकली और आराम आराम से सीढ़ियां उतरती नीचे आई। चारों तरफ अंधेरा था। वो अंधेरे में रास्ते का तयन करते पीछे बने गार्डन की तरफ आई, जहां एक छोटा सा दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। 1 हफ्ता पहले ही वो अपने कमरे की खिड़की के से एक चौकीदार को यह रास्ता इस्तेमाल करते देख चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से चाबी भी चुरा ली थी और आज मौका मिलते ही वो यहाँ से निकल जाना चाहती थी, क्योंकि वो और एहसान नहीं चाहती थी लोगों का, न अपनी वजह से सजदा बेगम को परेशान करना चाहती थी। वो साफ देखते सकती थी अपनी वजह से माँ बेटे के बीच के तनाव को।
वो नहीं जानती थी कि अर्श ने इसकी शादी क्यों की, मगर वो किसी को फहमी में नहीं रहना चाहती थी। ना वो खुद को इसके खानदान के काबिल समझती थी। इसने कांपते हाथों से चाबी से ताला खोला और जल्दी से दरवाजा खोलकर निकलने लगी। कहाँ जा रही हो? इसने सर्द लहजे में पूछने अकीदत पर अकीदत ने घबरा कर मुड़कर देखा। अर्श सीने पर हाथ बांधे इसे सुर्ख अंगारा आंखों से देख रहा था। अकीदत के हाथों से चाबी जमीन पर गिरी। कहाँ जा रही थी तुम? अर्श ने दोबारा पूछा तो इसने जल्दी से खुद को कंपोज करके अर्श की तरफ देखा। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, इसने संजीदगी से जवाब दिया, जबकि दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि निकल कर बाहर आ जाएगा। कौन सा घर? अर्श ने भी संजीदगी से पूछा। वही घर जहाँ से आप मुझे लाए थे। अगर तुम्हारा होता तो वो लोग तुम्हें बेइज्जत करके अपने नशेई बेटे के पल्ले नहीं बांध रहे थे। इसने भी तरकीब बा तरकीब जवाब दिया। दिल तो कर रहा था गला दबा दे, अगर वो ऐन वक्त पर नहीं पहुंचता तो वो क्या हो जाता। मैं जहां भी जाऊं आपको कोई हक नहीं मुझसे सवाल जवाब करने का। मुझे इस घर में नहीं रहना तो नहीं रहना, कहकर वो दोबारा इस दरवाजे से निकलने लगी। मगर अर्श ने इसका बाजू सख्ती से जकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले आया। हक की बात कर रही हो तुम? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या हक रखता हूँ तुम पर। वो इसे बेड पर धक्का देता अपनी शर्ट उतारने लगा। इसके लिए सोच के ही जानलेवा थी कि अगर बस घर से निकल जाती तो वो कहाँ ढूंढता इसको। वो जब अपनी माँ से इसके लिए लड़ रहा था, क्या सोचती हो? क्या इज्जत रह जाती इस घर में? वो इसे बेड पर धक्का देता अपनी शर्ट उतारने लगा। इसके लिए सोच कर ही जानलेवा थी कि अगर बस घर से निकल जाती तो वो उसे कहाँ ढूंढता। अर्श को शर्ट उतारता देख वो बेड से उठकर भागने लगी, मगर अर्श ने इसे कमरे से पकड़कर बेड पर पटका और इस पर झुक गया। इसके लम्स में इस कदर शिद्दत थी कि अकीदत को लगा कि वो यहीं मर जाएगी। इसे अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ तो वह इसकी सांसों को आजादी देता इसकी गर्दन पर झुक गया। प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़े। वो हिचकियों के दरमियान रोती हुई बोली। छोड़ दूं ताकि तुम मेरी दी हुई आजादी का फायदा उठाकर मेरी इज्जत दो कौड़ी के कर दो। वो इसे देखकर चबा चबा कर बोली। न जाने क्यों उस लड़की की आंखों में आंसू इसे अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। मगर मैं आपकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप अपनी मंगीते से शादी कर ले, प्लीज मुझे जाने दे। तो बेबसी से इसके सामने हाथ जोड़ दी। अर्श को इसकी एक ही रट पर गुस्सा आया। ये सब तुम किस ये सब तुमसे किसने कहा? मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप अपनी मर्जी से शादी कर। वो अभी तक अपनी बात पर अटकी थी। अर्श उठकर बैठ गया और अकीदत को बिठा लिया। इसके बिना दुपट्टे के सराफे पर देखकर अर्श ने अपनी नजरें झुकाई। वो ही जानता था इसने कैसे खुद को रोका था। तुम चाहती हो कि मैं किसी और से शादी करूं, तो वो मेरा जब दिल करेगा मैं करूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने मरना जीना मेरे साथ है। अगर आज के बाद तुम इस घर से बिना मेरी इजाजत के निकली तो तुम्हें जिंदा भी मैं जमीन में गाड़ दूंगा। आज के बाद तुम इसी कमरे में रहोगी, समझ आई बात? मेरी बीवी हो, बीवी की तरह रहो। मेरे सर पर मुसीबत बनकर मत नाचो। इसके सर लहजे पर अकीदत को अपने जिस्म में सनसनी से दौड़ती महसूस हुई। अर्श उठा और चेंज करके बेड की तरफ लेट गया। इसे आंखें बंद किए देख अकीदत वहां से एक तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ने लगी। अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें उठाकर बेड पर लाऊं तो खुद शराफत से आकर यहाँ लेट जाओ। अगर मुझे आना पड़ा तो अच्छा नहीं होगा। अर्श की धमकी पर वो जल्दी से एक कोने में होकर लेट गई। अर्श लाइट बंद करता आंखें मूंद गया। अकीदत का जिस्म हौले हौले कर लरस रहा था। इसकी घुटी घुटी सिसकियां इसे सुनाई दे रही थी। जब मजीद बर्दाश्त न हुआ था इसे खींचकर अपने सीने से लगाकर खुद में खींच लिया। डिस्टर्ब मत करो। अर्श के सरगोशी पर वो सख्ती से आंखें मीच गई। वो फ्रेश होकर आई तो वो बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। कल इसकी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग थी। इसे उम्मीद थी कि ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी। इसने एक नजर बालों में ब्रश फेरती जिसा को देखा, जो ब्राउन कलर के ट्राउजर शर्ट में लापरवाही से बैठी थी। एक ही कमरे में रहते हुए भी इस तरह की अजनबियत से रहना बहुत मुश्किल था। एक ही बेड पर सोते हुए भी वो नदी से दो किनारों की तरह थे। वो लड़की इसके दिल पर बुरी तरह सवार होने लगी थी। वो उठी और बेड पर अपने साइड आकर लेट गई। अपनी ही मोहब्बत से इस तरह मुंह मोड़कर रखना आसान तो इसके लिए भी न था। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें।
چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔